Good afternoon, students. It's our 22nd lecture on M3 and 6th lecture on unit 2nd, that is the Laplace transform. So we continue with that, and in previous lecture we have seen the problems, that is to solve the integral by using a definition of Laplace transform. Now there are again some problems which is based on the definition of Laplace transform. What is the heading here? The problem, that is evaluate the following integral using the definition of Laplace transform. Here we are given some definite integral and we have to solve it by using a definition of Laplace transform. So we first come on the first integral. The integral is from 0 to infinity t square e raised to minus t sin t dt, and we have to solve that integral by using the definition of Laplace transform. So first we write down that integral in this form. So suppose we give some notation to that integral. Here we consider that as a I. So we consider that let I is equals to that integral, and we have write in some simplified form. That is, first we have taken e raised to minus t first term, and then the remaining, that is t square sin t, we put in one bracket, and integration is with respect to t. So if you observe that carefully, that term e raised to minus t in bracket t square sin t dt, that is nothing but it is in this form, and that is nothing but a definition of Laplace transform. That we know that is L of f of t, that we know that L of f of t, that is equals to nothing but that integral from 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. और ये जो कुछ भी हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो यस के फॉर्म में आता है, सो वी डिनोट इट बाय एफ ऑफ एस बार. अब अगर इस इंटीग्रेशन को हमने इसके साथ कंपेयर किया विद दैट इंटीग्रेशन, so what we see here, in place of e raised to minus st there is a e raised to minus t. इसका मीनिंग क्या होगा कि e raised to minus st की जगह यहाँ पे e raised to minus t है, मतलब s की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे s की वैल्यू 1 हो गई इफ वी कंपेयर विद दैट. उसके बाद यहाँ पे f ऑफ t और यहाँ पे है t स्क्वायर साइन t, मतलब यहाँ पे f ऑफ t की वैल्यू हो गई t स्क्वायर साइन t. अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है हमको, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि यहाँ पे s की वैल्यू 1 है और हमारा f ऑफ t है t क्यूब साइन t. दैट मीन्स दैट इंटीग्रेशन वी हैव टू सॉल्व. That means we have to find the Laplace transform of that f of t, that is t square sin t. But what is the condition here? From that integration we observe that the value of s is equals to 1. मतलब हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द Laplace transform of t square sin t as we compare that integration with that definition of Laplace transform. और जो कुछ भी हमारा Laplace transform निकलेगा, it should be in the form of s, but वहां पे s की वैल्यू क्या होंगी, 1 होंगी. So remember that all thing here. So we come one by one here. First we have to find a Laplace transform of t square sin t. अब t square sin t का तो डायरेक्ट Laplace transform निकलने वाला नहीं है. There is a product of two function, one is a t square and second is a sin t. अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा या कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी वो हम देखेंगे, पर सबसे पहले हम निकालेंगे Laplace transform of sin t. So we take a Laplace transform of sin t. अब सबको पता ही चल गया होगा कि Laplace transform of sin t क्या रहता है, because it's our 6th lecture. So सबसे पहले ही लेक्चर में हमने देखा था कि Laplace transform of sin a t is nothing but a upon s square plus a square. Now if you compare with that sin a t, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, so Laplace transform of sin t, that is 1 upon 1 plus s square और s square plus 1. इसको हम ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. सो ये हो गया हमारा साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म. अब हमें निकालना है आगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन टी. अब टी स्क्वायर साइन टी है, मतलब हमारा फंक्शन कौन से फॉर्म में, इफ यू ऑब्जर्व दैट कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेंगी, हमारे पास प्रॉपर्टी है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज़ टू एन इंटू एफ ऑफ टी. हमने ये प्रॉपर्टी इसके पहले देखी है, प्रॉब्लम भी देखे हैं हम लोगों ने. So Laplace transform of t raised to n f of t का रिजल्ट क्या रहता है, that is equals to minus 1 raised to the power n into dn by dsn of f of s bar. ये प्रॉपर्टी हमने देखी है कि क्या रहता है यहाँ पे कि f of t का Laplace transform हमको निकालना पड़ता है, that is f of s bar, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, we have to take a derivative of that f of s bar n times, and here we have to multiply by minus 1 raised to n, अगर यहाँ पे t का पावर n रहा. अब इसके साथ अगर हमने कंपैरिजन की इसकी, तो यहाँ पे है टी स्क्वायर साइन टी, मतलब यहाँ पे n की टर्म क्या है, 2 है, तो 2 होने की वजह से यहाँ पे टर्म क्या आएगी, माइनस 1 रेज़ टू 2, और यहाँ पे n की जगह ds 2 बाय d2 बाय
ds2। और यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एस बार जो है दैट इज 1/s²+1। अब मैंने यहाँ पे 1/s²+1 की बजाय 1/1+s² लिखा, सो इट डजेंट मैटर, दोनों की वैल्यू वन एंड दी सेम है। अब हमें आगे क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व और सिंप्लीफाई दैट टर्म। सो -1² इज नथिंग बट 1, सो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। अब यहाँ पे d2/ds2, तो d2/ds2 को मैंने स्प्लिट कर दिया, दैट इज d/ds इंटू d/ds। मतलब यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू टेक अ डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म 1/1+s² एज अ 2 टाइम्स। सो सबसे पहला डेरिवेटिव हम लेंगे यहाँ पे, दैट इज ds ऑफ 1/1+s²। तो यहाँ पे क्या होगा सब, अब यहाँ पे ये कौन से फॉर्म में टर्म है हमारी, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1/x। 1/x का डेरिवेटिव क्या रहता है, -1/x²। तो यहाँ पे इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/1+s²²। तो यहाँ पे हमने लिखा है -1/1+s²²। बट यहाँ पे 1/x है क्या, नहीं, 1/x होता तो -1/x², बट x की जगह क्या है 1+s²। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1+s² का रिपीट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो 1+s² का रिपीट डेरिवेटिव क्या होगा, 2s, जो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में लिया है। सो 1/1+s² डेरिवेटिव दैट इज -1/1+s² एंड रिपीट डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट 1+s² दैट इज नथिंग बट 2s। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे मैंने लिखा है। उसके बाद हमें क्या लेना है, सेकंड डेरिवेटिव, और यहाँ पे तो इसकी वैल्यू -1² की 1 ही आती है, सो देयर इज नो नीड टू राइट डाउन दैट। सो वी कम ऑन दैट साइड। अब यहाँ पे आते हैं हम, पर ये जो कुछ भी हम सॉल्व कर रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल रहे हैं, पर यहाँ पे कंडीशन है हमारी s = 1। सो ये हर स्टेप पे यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। सो टू रिमेम्बर दैट इज द वैल्यू ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म s = 1। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, वी take that -2 out of that derivative because it is a constant. So we have taken here -2 out of derivative term. So ddS of s/1+s²²। And now we have to take a derivative of that term. अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यस यहाँ पे है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वोशंट फॉर्म। क्वोशंट फॉर्म में रहा तो क्वोशंट फॉर्म का रूल, वहां पे डेरिवेटिव का हमें क्या करना पड़ेगा, यस अप्लाई करना पड़ेगा। सो पहले -2 एज इट इज है हमारा, यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया, न्यूमरेटर इज यस एंड डेरिवेटिव ऑफ यस विथ रिस्पेक्ट टू एस दैट इज 1। सो वी हैव पुट दैट 1 एज इट इज, देन डिनोमिनेटर रिमेन एज इट इज 1+s²², देन माइनस न्यूमरेटर रिमेन एज इट इज, एंड नाउ वी हैव टू टेक अ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा, दैट इज 2 into 1+s² and repeat derivative of that bracket 1+s² that is 2, yes। So ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ दैट 1+s²² that is 2 into 1+s² and then repeat derivative that is 2s। अब उसके बाद क्या रहता है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में हमें लेना पड़ता है डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो अब डिनोमिनेटर स्क्वायर क्या होगा, 1+s²² और उसका स्क्वायर दैट इज 1+s²⁴। तो ये हो गया 1+s²⁴। अब इस टर्म को हम करते हैं सिंप्लीफाई। अब थोड़ा अगर आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो आप लोगों को क्या दिखेगा कि देयर इज अ ब्रैकेट 1+s², here is also 1+s² and here is also 1+s², and that bracket is common to numerator as well as denominator. So we take that term 1+s² common from the both numerator and denominator. अब यहाँ पे मैंने 1+s² यहाँ से भी लिया और यहाँ से भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 कॉमन लेने के बाद 1+s² here is also 1+s²। अब यहाँ से 1+s² हमने एक ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर होने की वजह से एक टर्म तो एज इट इज रहेंगी 1+s²। अब यहाँ पे एक ही टर्म थी, वो बाहर लेने की वजह से यहाँ पे सिर्फ s into 2 रहा, 2 into s रहा। सो टोटल टर्म क्या हो जाएंगी, ये 2 into 2 4 हो जाएंगी और ये हो जाएगा हमारा 4s²। तो ये हो गया हमारा 4s², that is s into s, so it become s² and that is 2 into 2 4s², so it become 4s²। अब यहाँ पे थोड़े चेंजेस होंगे हमारे, तो यहाँ पे 4s² हो गया, 1+s², यहाँ का एक ब्रैकेट 1+s², ये हो गया हमारा -4s² और डिनोमिनेटर से एक ब्रैकेट कॉमन निकल जाएगा बाहर आने की वजह से, ये हो गया हमारा 1+s²। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1+s² -4s², +s² -4s², so it become a -3s²।
तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 3s²। ओके, बट ये कंडीशन कहाँ की है? व्हेन आवर s इज इक्वल्स टू 1। सो व्हाट वी हैव टू पुट? वी हैव टू पुट हियर s इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम s इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, तो देखते हैं अब हमारी वैल्यू क्या आती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्हेन वी पुट s इज इक्वल्स टू 1, तो ये तो हमारा -2 एज इट इज है। यहाँ पे हो गया हमारा 1, यहाँ पे हो गया हमारा 3, और यहाँ पे s² दैट इज 1² अपॉन में आ जाएगा हमारा 1 प्लस s² इज नथिंग बट 1²। सो अगेन हियर इज 1² इज 1, और यहाँ पे हमारा क्यूब, यहाँ पे हम क्यूब लिख लेते हैं। अब आगे आ जाएंगे हम, सो -2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 इंटू 1², सो अगेन इट इज 1, सो 1 माइनस 3 इज नथिंग बट -2। अब ये हो गया हमारा -2, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 दैट इज 2, एंड 2 क्यूब इज नथिंग बट 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो ये हो गया हमारा 8, और यहाँ पे आ गया हमारा 8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ये हो गया प्लस, और 2 इंटू 2 4, 4/8। ये हो गया हमारा 4/8, और ये 4/8 क्या रहता है? दैट इज नथिंग बट 1/2। सो फाइनली हमारा आंसर आ गया यहाँ पे Laplace transform of t² sin t that is equals to 1/2. So in this way we get the Laplace transform of that. But ये कंडीशन क्या थी हमारी? दैट इज s इज इक्वल्स टू 1. सो फाइनली हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि दैट इंप्लाइज इंटीग्रल और वैल्यू ऑफ दैट i, जो हमने इनिशियली हमने यहाँ पे नोट किया था ना कि ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने i कंसीडर की, मतलब हमारी i की वैल्यू क्या आ गई? दैट इंप्लाइज i इज इक्वल्स टू 1/2. In this way we get the value of that integral. Hope you understand that. और ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैंने लिखा है ऑन दैट सेम टाइप। क्या प्रॉब्लम है? इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity e raised to -2t sin cube t dt। तो ये यहाँ पे हम कंटिन्यू करें। स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो था हमारा दैट इज वी हैव दैट on that side, that is integral from 0 to infinity e raised to -2t, and here is the sin cube of t dt। ये इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा था मैंने, तो यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफिकेशन किया है दैट sin cube t, क्योंकि sin cube t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास नहीं रहता है। वी हैव द लैप्लास ट्रांसफॉर्म sin 3t और sin t। सो मैंने sin cube t को कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टेकन हियर फॉर्मूला दैट इज sin 3t। sin 3t के सबको फॉर्मूला पता है, दैट इज 3 sin t minus 4 sin cube of t। अब sin cube of t से from that you take a value of that sin cube of t। we have find the value of that sin cube of t, इसलिए हमने sin cube of t को एक साइड ले लिया। sin cube of t क्या हो जाएगा? दैट इज sin 3t। ये टर्म इधर आ जाएंगे, सो इट बिकम माइनस sin t माइनस 3 sin t, और डिनोमिनेटर में ये -4 आ जाएगा, दैट इज -4। अब उसके बाद हमने क्या किया? ये माइनस साइन यहाँ पे न्यूमरेटर को अप्लाई कर दी। अब न्यूमरेटर को अप्लाई करने की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो ये टर्म हमने पहले लिखी, दैट इज 3 sin t माइनस sin 3t/4। सो इन दिस वे वी गेट द वैल्यूज ऑफ दैट sin क्यूब ऑफ t। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो sin क्यूब ऑफ t टर्म है इस इंटीग्रेशन में के यहाँ पे इंटीग्रेंड में, तो वी रिप्लेस दैट टर्म बाय दिस। सो एक बार फिर से हम उसको i से डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन को। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 to infinity दैट इज e raised to -2t एज इट इज, और sin क्यूब ऑफ t रिप्लेस हो गया दैट होल टर्म्स, एंड इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू t। अब और हमें पता है कि बाय दिस डेफिनेशन एल ऑफ एफ ऑफ टी क्या रहता है? इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 to infinity e raised to -st f of t dt, और जो रिजल्ट आता है वो s के फॉर्म में, सो इट इज f of s बार। सो हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग दैट डेफिनेशन। अब इसके साथ अगर हमने इसकी कंपैरिजन की, इफ यू कंपेयर दैट इंटीग्रेशन विथ दैट, तो हमें पता चल जाएगा कि s की जगह यहाँ पे 2 है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया s इज इक्वल टू 2, और अगर f ऑफ t आप देखेंगे यहाँ पे, तो f ऑफ t इज नथिंग बट दैट टर्म 3 sin t माइनस sin 3t/4। तो ये दोनों बातें हमने यहाँ पे ध्यान से लिख ली है, और ये नोट करना सबसे जरूरी बात है, क्योंकि आगे जो प्रॉब्लम करना पड़ता है हमें, दैट इज डिपेंड ऑन दैट यस एंड दैट f ऑफ t। अब हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है हमें? वी हैव टू टेक अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, दैट मींस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट f ऑफ t इज हियर
दैट इज 3 sin t माइनस sin 3t बाय 4। बट यहाँ पे कंडीशन क्या रहेंगी, यहाँ पे s की वैल्यू क्या रहेंगी, 2 रहेंगी। सो अब आते हैं हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे तो 1/4 कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ पे हम अब इसको 1/4 बाहर निकाल लिया। सो वी टेक अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट होल टर्म। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब आप sin t का लेंगे तो आपको पता है कि sin t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म रहता है 1/s² + 1, 3 एज इट इज रहेगा यहाँ पे बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, माइनस अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म sin 3t, नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ sin 80, और sin 80 का पता है हमें दैट इज a/s² + a²। सो a की जगह 3 है, सो 3/s² + 3² इज नथिंग बट 9। सो ऐसे फॉर्म में आ गए हमारे टर्म आफ्टर टेकिंग अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सब s के फॉर्म में टर्म है, बट हमें पता है कि यहाँ पे कंडीशन क्या है, s = 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहां जहां भी s है वहां पे हम क्या करेंगे, पुट 2 करेंगे पुट। सो ये 1/4 एज इट इज, 3 भी एज इट इज, अब s रिप्लेस हो गया 2 से, तो 2² + 1, यहाँ पे भी 3 एज इट इज, यहाँ पे भी अगेन s इज रिप्लेस बाय 2, सो इट हो गया 2² + 9। अब ये 1/4, यहाँ पे 3/2² + 1 दैट इज 4 + 1 दैट इज 5, माइनस 3/4 + 9 दैट इज 13, सो -3/30। अब इसको अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब ये तो इजी टर्म है, आप सभी को आ जाएंगी, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस करके दे दिए आप लोगों को। 1/4, 3 13 = 39, माइनस 5 3 = 15 अपॉन 13 5 = 65, वी हैव राइट दैट। देन 1/4 यहाँ पे एज इट इज 39 - 15 दैट इज 24/65, एंड 4 6 = 24, सो यहाँ पे आ गया हमारा 6, और ये हो गया हमारा 6/65। सो फाइनली वी कैलकुलेट दैट आई। सो जो इंटीग्रेशन था हमारा, हमने इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल ली दैट इज 6/65, एंड बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा कि अब हम डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसे फॉर्म में इंटीग्रेशन रहा तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग दैट इंटीग्रेशन। ओके, so that is second problem, and now we can continue on a third problem। अब थर्ड प्रॉब्लम देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है इंटीग्रेशन की वैल्यू। वी हैव टू प्रूव दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity t e⁻³ j0/4t dt, और उसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट हमारा आना चाहिए 3/125। अब हम क्या करेंगे, और हमें यहाँ पे कंडीशन भी दी है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ j0 दैट इज इक्वल टू 1/√s² + 1। अब ये जो रहते हैं, अब ये टर्म आपको नहीं लग रही होंगी, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस। अब उसकी पर्टिकुलर हमें वैल्यू भी दी है कि j0 इज इन द फॉर्म ऑफ 1/√s² + 1, बट हमारे पास अब क्या है, यहाँ पे j0 अब हमारे पास j0 है पर j0 नहीं है, j0, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, आप लोगों को पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(at), लैप्लास ट्रांसफॉर्म f(at), यहाँ पे f(t) की जगह समझो j0, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म f(at) क्या रहती है, 1/a × f(s/a)बार, वो प्रॉपर्टी रहती है 1/a × f(s/a)बार रहती है। तो यहाँ पे इसके साथ अगर इसके कंपैरिजन की तो j0 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे a की जगह सपोज 4 है, सो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे रहता है हमारा f(s), तो ये था आपका f(s) इस फंक्शन का। सो f(s) क्या होगा, यहाँ पे s इज रिप्लेस बाय s/4, क्योंकि यहाँ पे s/a है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, सो s इज रिप्लेस बाय s/4, और इसका स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पे s/4² है +1। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, 1/4 तो हमने एज इट इज ले लिया, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा s² + 4², यहाँ पे 4² रहेगा, और डिनोमिनेटर में भी रहेगा 4²। अब उसके बाद क्या होगा, ये रूट में है 1/4², अब रूट के बाहर अगर ये 1/4² आ गया तो वो हो जाएगा 4, एंड दैट 4 गेट अ कैंसल। अब कैंसल होने की वजह से सिंपली यहाँ पे क्या रहेगा, 1/√s² + 4²। सो होप यू अंडरस्टैंड अप टू दैट स्टेप। सिंपली एक ध्यान में रखना कि f(t) की जगह यहाँ पे j0 है, मतलब की जगह j0, और f(t) की वैल्यू हमें दी है, तो हमें निकालनी थी f(4t), सो दैट इज j0 तो हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर दी, यहाँ पे a की जगह 4 था।
अब उसके बाद आते हैं हम इंटीग्रेशन की तरफ। अब इंटीग्रेशन में क्या टर्म्स है हमारे, दैट इज टी ई रेस टू -3t j0 of 4t। तो हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा। पहले हमने एक्सपोनेंशियल टर्म लिख ली क्योंकि हमें डेफिनेशन लगानी है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। सो इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to infinity e रेस टू -3t, और जो रिमेनिंग टर्म है उसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, दैट इज अ t j0 of 4t dt। अब अगेन उसको हमें डेफिनेशन से सॉल्व करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो इसके साथ हम उसकी कंपैरिजन करेंगे। अब इसके साथ अगर इस इंटीग्रेशन के साथ अगर ये इंटीग्रेशन कंपेयर किया तो ये आ जाता है हमारा f ऑफ t आ जाता है, और अगर s के साथ कंपैरिजन किया तो यहाँ पे s आ जाता है 3। सो हमने यहाँ पे हमें क्या लेना है, हमें लेना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ t, और f ऑफ t अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे f ऑफ t है t j0 of 4t। सो वी हैव टू टेक द, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, मतलब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट f ऑफ t। सो यहाँ पे हमने f ऑफ t लिखा, पर कंडीशन क्या है यहाँ पे, s इज इक्वल्स टू 3। सो वी हैव रिटन दैट ऑल हियर। अब उसके बाद ये तो हमारे पास j0 of 4t की लैप्लास ट्रांसफॉर्म है जो अभी अभी हमने निकाला था, दैट इज j लैप्लास ट्रांसफॉर्म j0 of 4t। तो अब हमें क्या निकालना है, दैट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म t इंटू j0 of 4t। अब ये निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, हाँ अभी सभी ने देखा है हमने फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है, दैट इज अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेस टू n इंटू f ऑफ t, जो सबको पता है, दैट इज -1 रेस टू n इंटू dn बाय dsn ऑफ f ऑफ s बार। सो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो यहाँ पे t रेस टू n, सो t रेस टू n की जगह t रेस टू 1 है, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 1 आ गई, सो -1 रेस टू 1 रहेगा, यहाँ पे n की जगह भी 1 ही आएगा, दैट इज ddS ऑफ दैट f ऑफ s बार, और हमारा f ऑफ s बार इज नथिंग बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म j0 of 4t, वो f ऑफ s बार हमने यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद माइनस ऑफ ddS ऑफ दैट, अब क्या करेंगे हम, जो रूट है 1/रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, उसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। अब रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 1/s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रेस टू द पावर 1/2। अब ये रेस टू द पावर 1/2 न्यूमरेटर में जाने के बाद ये हो गया हमारा -1/2। तो यहाँ पे आ गया s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस रेस टू द पावर -1/2। अब इसका लेना है हमें डेरिवेटिव। सो ये तो माइनस है हमारे एज इट इज रख लिया हमने। अब यहाँ पे आपको पता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x रेस टू n का, x रेस टू n का फॉर्मूला दैट इज n इंटू x रेस टू n -1। सो n की वैल्यू -1/2 दैट इज -1/2 s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रेस टू द पावर -1/2 -1। So -1/2 -1 हो गया -3/2, and again you have to take a repeat derivative of that bracket. So bracket का repeat derivative that is a 2s. So in this way we get that derivative. अब उसके बाद आ जाएंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, सो ये 1/2 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसके बाद हाँ अब आगे आ गए हम यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/2, ये हमारा 2s, और ये यहाँ पे हो गया हमारा s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट का पावर क्या है -3/2, ये हमारा ब्रैकेट का पावर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पुट करना है s की वैल्यू, क्योंकि ये जो वैल्यू, ये जो इंटीग्रेशन है, यहाँ पे कंडीशन है हमारी कि वी हैव फॉर s इज इक्वल्स टू वैल्यू है हमारी s इज इक्वल्स टू 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जहां जहां भी s है वहां वहां s को 3 से रिप्लेस करना पड़ेगा। सो 1/2 एज इट इज, s को 3 से रिप्लेस कर दिया हमने, 2 into 3, यहाँ पे भी s को 3 से रिप्लेस कर दिया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हैविंग अ पावर -3/2। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारा ये 2 कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ पे 3 रह जाएगा, और यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 9 + 25 सॉरी 9 + 16 हो जाएगा, और 9 + 16 इज नथिंग बट 25 हैविंग अ पावर -3/2। सो यहाँ पे आ जाएगा 25 हैविंग अ पावर -3/2। अब 3 इंटू ये हमको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, सो 1/25 रेज़ टू द पावर 3/2। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज नथिंग बट 1/125 दैट इज 125। So that gives 3/125. That is the value of our integration I by using the definition of Laplace transform. Hope you understand that. Both are the important problems. So revise that whole 3 problems. And now we continue with some other problem. Students, we have given here 2 problems for your homework to solve it.
On that same method, we have to evaluate that integral from 0 to infinity e raised to minus 2t sin ht by t dt. ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. ऑब्वियसली यू हैव टू यूज द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. अब इसको अगर डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ कंपेयर किया तो आपके ध्यान में आ गया होगा कि e रेस टू माइनस एस टी की जगह यहाँ पे e रेस टू माइनस 2t है, मतलब s की वैल्यू है 2 और f ऑफ t की वैल्यू है यहाँ पे sin ht by t. सो इसको सॉल्व करना है, मतलब यू हैव टू टेक अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin ht by t एट s इज इक्वल टू 2. और इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख के दिया, दैट इज 1/2 log 3. सो यू हैव टू सॉल्व इट, यू हैव टू टैली योर आंसर. प्रॉब्लम इज वेरी इजी. देन आफ्टर दैट देयर इज अ सेकंड, that is evaluate integral from 0 to infinity cos 60 minus cos 4t by t dt. अब आप लोग बोलेंगे मैडम यहाँ पे तो e रेस टू माइनस एस टी की टर्म नहीं है, सो माइनस एस टी की जगह, सो इसके साथ अगर हमने कंपैरिजन की तो यहाँ पे एस की e रेस टू माइनस एस टी की जो टर्म नहीं है वो यहाँ पे हमने एडजस्ट कर दी, दैट इज e रेस टू माइनस 0t, e रेस टू माइनस 0t, दैट इज वैल्यू इज 1. सो यहाँ पे s की वैल्यू आ गई हमारी 0 आ गई, यहाँ पे s की वैल्यू हमारी. अब s की वैल्यू 0 कंसीडर करके हमें इस टर्म का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos 60 माइनस cos 4t by t. और जो कुछ भी इसकी वैल्यू आएंगी यू हैव टू फाइनली पुट s इज इक्वल टू 0. और जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है दैट इज i इज इक्वल टू log ऑफ 2/3. सो होप यू अंडरस्टैंड दैट बोथ प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व इन योर नोटबुक. सो वी विल कंक्लूड हियर. सो थैंक यू.